Dear students, here I am starting with geography lesson number 2. In geography and in this chapter especially, please always remember to give examples. Always support your answer wherever it is possible with examples. So without wasting time, starting with this chapter, the chapter as the heading is that forest resources and wildlife. We share this planet with not only human beings but billions of other living beings, whether starting from microorganisms, bacteria, and the animal life, plant life. We humans, along with all living organisms, we form a वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम. आप देखिए ये फूड चेन और फूड वेब के बारे में आप लोगों ने बायो में मिडिल क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं ये. एंड the plants, animals, microorganisms recreate the quality. ये recreate का meaning जो है ये entertainment नहीं है. Recreate, it means that they modify the quality of the air which we breathe. कैसे, वो साइंस का पार्ट है. The water we drink, soil जिसमें हमारा फूड जो है वो प्रोड्यूस होता है, all those things they are without which we cannot survive. Forest they play a very key role in our ecosystem. और फॉरेस्ट का की रोल आप अगर मैं काउंटर उसका वो करूं तो आप ये जितनी ट्रेजरीज हुई हैं, और अभी कल या डे बिफोर yesterday I was seeing the news and reading in the newspaper, it was in Himachal Pradesh also. And now I'm moving, because this topic is omitted, now I'm moving to the topic from where we have to start in actual. So here I am coming to the topic of conservation. Conservation in forest and the wildlife conservation in the background, decline in wildlife population and forestry ये बहुत essential है. मतलब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कंजर्वेशन की बात कर क्यों रहे हैं. इससे रिलेटेड मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग कह लीजिए, आपको इंसिडेंट्स कह लीजिए इसको. कोविड के टाइम में आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही थी कि कैसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन भी लोएस्ट लेवल पे है, एंड इन द सेम वे एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है वो लोअर लेवल पे होने के साथ साथ आप देखिए कैसे जो वाइल्ड लाइफ है it was also enjoying. That means human beings, we can say that they are the creator also and the destructor also. Why do we need to conserve our forest? Conservation preserves the ecological diversity in our support system and for better growth of species. आप देखिए हम कंजर्वेशन की बात क्यों करते हैं, बिकॉज कंजर्वेशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को. हमारे सपोर्ट सिस्टम है वाटर, एयर, सॉइल, ये क्या है, ये दीज आर आवर सपोर्ट सिस्टम, और इनको वो डाइवर्सिफाई प्रोटेक्ट करती है. फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी. इससे मुझे याद आया कि एग्जांपल वो जो मैं आपको देना चाहूंगी, दैट because of the extraction of petrol in Mumbai High, it was found that aquatic life was disturbed. Then few conservation measures and methods they were taken for that. In 1960s and 1970s, conservationists they demanded National Wildlife Protection Program. 1972 में ये एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ. ये मैं इसलिए आपको हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ ये 1972 में जाकर. ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज जो है दिस वाज आल्सो पब्लिश्ड. ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज की जो ये लिस्ट है ये भी पब्लिश हुई थी एंड गवर्नमेंट ने ये पब्लिश करी थी ये. द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज, थ्रस्ट मीन्स द मेन फोकस होता है प्रोग्राम का, प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन. जो भी एंडेंजर्ड, देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होते हैं ये मैं आपको बता दूं क्योंकि वो पोर्शन ओमिटेड है. एक तो नॉर्मल स्पीशीज होते हैं जो आप देखते हैं, नॉर्मल एनिमल्स अपने रोड्स वगैरह पे देखते हैं, बट व्हाट आर एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड मींस जिनका होना जो अभी है बट nobody knows, if negative factors have not been solved, then
because of any negative factor they may become extinct also, या वो बिल्कुल धरती पे रहेंगे ही नहीं। तो इस प्रोग्राम का जो फोकस था was towards protecting the remaining population of certain endangered species। कैसे? by banning hunting, लीगल प्रोटेक्शन देना उनके हैबिटेट्स को, मतलब उनके घरों को, एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। Again, yesterday only I was seeing in the news, and I think it is my duty also to share with you that about all these things जो हम न्यूज में देखते हैं और जो आपके लेसन से रिलेटेड है। कल ही न्यूज में अगर आप लोगों ने भी देखा हो, वेस्ट बंगाल बॉर्डर से काउज जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी स्मगलिंग होती है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर से। अनफॉर्चुनेट इट इज फॉर वेरियस पर्पसेस, बीफ and for their skin also. The central government, तो सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क, 9th पे पढ़ा है आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। और प्रोजेक्ट टाइगर, आप तो नहीं, मैं कहूंगी आप लोग 10th क्लास के बच्चे, लेकिन मुझे याद है अराउंड अबाउट 20 years बैक हर एक स्कूल में एक प्रोजेक्ट टाइगर क्लब हुआ करता था, और वो क्लब जो है वो न्यू वेज और काफी उसका रिजल्ट जो है वो काफी अच्छा रहा। सी राइनो एंड डियर इन काजीरंगा पार्क, तो ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये बनाई गई। और ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सब एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एक रिवीजन वीडियो में डालूंगी, तो उसमें मैं आप लोगों को एक बार ये दिखाऊंगी उसमें आप लोगों को दैट ये आपको ये थोड़ा सा मैं कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल्स की जो है वो शेयर करूंगी मैं आपके साथ में जो रिवीजन वीडियो में। ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, यू डिड नॉट लर्न दिस थिंग, बट इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, और टाइगर की जो पॉपुलेशन है ये बहुत कम हो गई है, इसमें 1827 है, बट आई थिंक द लेटेस्ट फिगर इज 1100 समथिंग, ओनली 1100 दे आर एक्सटिंक्ट नाउ। तो मेजर थ्रेट जो है ये मेजर थ्रेट इसका क्या है? न्यूमरस सच एज पोचिंग फॉर ट्रेड, shrinking habitat, depletion of prey-based species, and this population, human population, because of the growing human population. This is the thing that you should only study. Otherwise, there is no need to like learn everything. You just go through it. Conservation projects are now in the revision video. I will explain this Project Tiger. The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its components. वो biodiversity पे बहुत ज़्यादा focus कर रहे हैं. There is now a more intensive search for different conservation measures. मतलब बहुत ज़्यादा इस पे सर्च हो रही है कि कौन से कंजर्वेशन मेथड्स हम लेकर आए because of which वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन मिल सके। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट several hundred butterflies also, आपको हैरानी होगी कि बटरफ्लाइज भी इस कैटेगरी में है, moths, beetles and one dragonfly, they have been added to this protected species list। आप देखिए ये अगर आपके उसको ये बचाते भी हैं हमारे इकोसिस्टम को, butterflies, moths, and they save our ecosystem also। Now I am coming to the next topic, that types of distribution of forest and wildlife resources. Which are the different types? This is very, very, very important. Types of forest. Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them. इसीलिए इंडिया ने, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का एक डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड IFS। एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज होता है, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एंड दीज आर क्लासिफाइड, फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। रिजर्व फॉरेस्ट, अगर आप कभी हिली एरियाज में गए हो या कभी आप फॉरेस्ट एरिया में गए हो तो आप देखेंगे कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसके नीचे लिखा होता है दैट रिजर्व फॉरेस्ट, उस गवर्नमेंट का नाम, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, गवर्नमेंट का नाम लिखा होता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट has been declared under the reserve forest list, and they are very valuable
अगर हम बात करें कंजर्वेशन की तो दे नीड टू बी कंजर्व्ड. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व में more than half of the total forest is declared reserve. Protected, almost 1/3 of the total forest area is protected forest, almost 1/3, and as declared by the forest department, वो protected है. This forest land are protected from further depletion, मतलब और ज्यादा इनको डिप्लीट ना किया जाए, इससे उनको काफी ज्यादा उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है. I hope you must have. And the last जो कैटेगरी आती है that is the unclassed forest. The meaning of this unclassed forest is कि unclassed forest का meaning होता है कि जिसमें कोई भी ये उनको लाइक ग्रेजिंग वगैरह करा सकते हैं. These are the forest and wasteland belonging to both government and private individuals. मतलब इसमें कोई वो नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी बिलोंग कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को भी ये फॉरेस्ट जो है वो बिलोंग कर सकती है. ये now reserved and protected forests are referred to the permanent forest estate maintained for the purpose of producing timber and other forest produce. मध्य प्रदेश का बहुत एरिया परमानेंट फॉरेस्ट में है, 75%. I had been to the place Pachmani and here मतलब वो into the forest you go there, अगर आप कभी वो गए हैं या तो मध्य प्रदेश has been the largest area under permanent forest, constituting 75% of its total forest area. Jammu Kashmir, Andhra Pradesh, Uttarakhand, Kerala, these are the states जहाँ पे forest area highest मध्य प्रदेश में है, reserve forest area, followed by these are the states जो आप कुछ एग्जाम्पल्स के लिए कुछ आप लोग याद कर सकते हैं. एंड ये महाराष्ट्र, दे हैव लार्ज रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, while Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan, they have bulk of the protected forest. And northeastern states have a very high percentage of forest as unclassed forest, क्योंकि उसको सारी लोकल कम्युनिटीज जो है वो वहां पर मैनेज करती हैं और लोकल कम्युनिटीज उन फॉरेस्ट एरिया का ध्यान रखती हैं. दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट. नाउ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो है ये हमारी कंट्री में नई नहीं है. इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज स्ट्रगल करती हैं टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स. सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में विलेजर्स हैव फॉट फॉर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर केस चला था सलमान खान के ऊपर भी, जिन्होंने ये इसका ब्लैक बक का उन्होंने किया था. Then the inhabitants of 5 villages in Alwar district राजस्थान में उन्होंने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को भैरव देवी डाकअप सॉन्चुरी डिक्लेयर किया है, और अपने ही रूल्स हैं उनके वहां पे. मतलब गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिजेक्ट कर दिया है, बट बात ये है कि वो रिजर्वेशन जो कर रहे हैं वो उनमें अपने ही उनके रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एंड नोबडी हैज अ राइट कि उनके रूल्स को वो कुछ डिक्लेयर कर सके, रॉन्ग डिक्लेयर कर सके. एंड आप देखिए दे आर डिक्लेयरिंग their own set of rules and regulations which do not allow hunting and protecting the forest or encroachment. मतलब encroachment का मतलब है कि घेर लेना उसको, फॉरेस्ट को, उस एरिया को, उसको एनक्रोच कर लेना, उसको घेर लेना, ये उन्होंने अपने ही अकॉर्डिंग उन्होंने किया है. नाउ द ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है ये जो टॉपिक है. Now I will move to the this famous चिपको मूवमेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चिपको मूवमेंट हिमालयाज में बहुत सक्सेसफुली रेजिस्ट किया डिफॉरेस्टेशन को, और कम्युनिटी को काफी इन्होंने प्रमोट किया, एनकरेज किया कि एफॉरेस्टेशन के लिए, मतलब मोर एंड मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड. अटेम्प्ट्स हैं, देयर आर अटेम्प्ट्स टू रिवाइव ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स. आप देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है. ये नाम नया दे दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर क्या है ये ट्रेडिशनल मेथड. देन फार्मर्स एंड सिटीजंस के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, लाइक बीज बचाओ आंदोलन, इन तेरी, नवदान में. ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्रुप्स बने हुए हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है ये. एंड सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं, जो इकोनॉमिकली इजीली अवेलेबल है, लेकिन इनका यूज एग्रीकल्चर में नहीं होना चाहिए. In India, joint forest management
प्रोग्राम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. लोकल कम्युनिटीज, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया है, गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटी, दे हैव कम टुगेदर टू कंजर्व द फॉरेस्ट. The program has been in formal existence since 1988 when the state of Odisha passed the first resolution of joint forest management. And इसमें लोकल आप देखिए इंस्टीट्यूशंस का फॉर्म होना, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे आपको बेटे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा. लोकल इंस्टीट्यूशंस का इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है. The members of the communities are entitled to benefit to intermediaries benefits like non-timber forest producers and share in the timber harvest. The clear lesson from the dynamics of both environmental destruction and reconstruction in India is कि local communities को involve करना जरूरी है. For example, the result of your class does not depend on the walls on the desk. The result of your class depend on the students who are the part of that class. इस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में अगर फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो उस कंजर्वेशन मेथड का जो इफेक्ट है तभी आ सकता है जब लोकल कम्युनिटीज हर तरफ इन्वॉल्व होंगी, एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो पीपल सेंट्रिक होती हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती हैं, इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग होती हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गौतम बुद्धा की लाइन, अ ट्री इज अ peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance. चुपचाप ये देखिए नेचुरल वेजिटेशन कितने सेक्रीफाइसिंग है, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, फिर भी हमें प्रोड्यूस देते हैं, हमें शेड ऑफर करते हैं, प्रोटेक्शन. आप देखिए ना, आप कहीं भी धूप में जा रहे हैं तो अपनी कार, अपनी व्हीकल पेड़ के नीचे लगाना चाहते हैं, लेकिन पेड़ अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो कहाँ लगाएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल. आई विल शेयर the next video will be the revision video of this chapter because ये chapter आप लोगों को बहुत साल बाद ये चैप्टर आपके कोर्स में आया है, तो इसकी रिवीजन वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता दूंगी, कुछ बॉक्स की इंफॉर्मेशन है वो भी आपको बता दूंगी, मैं आपको क्या करना है क्या आपको नहीं करना, दैट ऑल्सो आई विल शेयर विद यू. एंड माई रिक्वेस्ट इज अगेन दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में आपकी रिक्वायरमेंट जो भी हो उसको आप लिखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.